BBC کی ایک تحقیقات کے مطابق 2 خواتین نے الزام لگایا ہے کہ میرڈ ایٹ فرسٹ سائٹ UK کی فلم بندی کے دوران ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، جس نے برطانوی نشریاتی ادارے چینل 4 کو ریئلٹی TV شو کے تمام پچھلے سیزن ہٹانے پر مجبور کیا تھا، جبکہ وہ الزامانہ جانے والا یہ شو خود کو ایک جرات مندانہ سماجی تجربہ کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں سنگل لوگ اجنبیوں سے شادی کرتے ہیں جو اپنی شادی کے دن پہلی بار ملتے ہیں۔ حالانکہ یہ شادی قانونی طور پر پابند نہیں ہے جوڑے، جبکہ شادی روزانہ فلمایا جاتا ہے، پھر ہنی مون پر جاتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں اور اپنے تعلقات کو نیویگیٹ کرتے ہیں۔ کارلوس الکاراز کا کہنا ہے کہ وہ ومبلڈن کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ دائیں کلائی کی چوٹ سے صحت یاب ہوں گے، جس نے اسپیناٹ کو فرانسیسی اوپن سے باہر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ دنیا کے نمبر 2 مردوں کے ٹینس کھلاڑی نے منگل کو کہا 23 سالہ 7 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن نے گزشتہ ماہ بارسلونا اوپن سے دستبرداری کے بعد سے نہیں کھیلا ہے۔ ملک کی وزارت صحت کے مطابق 45 دن کی جنگ بندی میں توسیع کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت نے منگل کو 3020 ہلاکتوں کی تشویش کے بعد شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ 2 مارچ سے جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو ہلاکتوں کی کل تعداد 3042 ہو گئی ہے۔ امریکہ دہائیوں میں اپنے سب سے زیادہ نتیجہ خیز وسط مدتی انتخابات میں سے ایک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 3 نومبر کو ایوان نمائندگان کی ہر نشست اور سینیٹ کی 1/3 نشستیں حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر دوسری مدت صدارت پر ملک کا پہلا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی رہنما شی جن پنگ نے انہیں یقین دہانی کے دوران ایران کو ہتھیار نہیں بھیجے گا۔ منگل کو یہ بیان ٹرمپ کے گزشتہ ہفتے چین کے 3 روزہ دورے سے واپس آنے کے بعد سامنے آیا، جس کے بعد امریکی صدر نے کئی تجارتی معاہدوں کی تعریف کی، لیکن ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں کی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی PAA نے منگل کو بھارتی طیاروں کی پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی میں 24 جون تک توسیع کر دی۔ PAA کے جاری کردہ تازہ نوٹسٹو ایئر مین نوتم کے مطابق پاکستانی فضائی حدود ہندوستان میں رجسٹرڈ تمام طیاروں کے لیے بند رہے گی۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے لچکدار بحالی اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے فریم ورک کے تحت N5 ہائی وے کے کلیدی حصوں کی تعمیر نو کے لیے $316 ملین کے قرض کی منظوری دی ہے۔ قرض کے معاہدے پر اقتصادی امور کے سیکرٹری محمد حمیر کریم قدوائی اور AIB کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کانسٹنٹین لیمیٹوسکی نے دستخط کیے۔ جب کوچ کارلو انسیلوٹی نے برازیل کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں جگہ بنانے والے کھلاڑیوں کی فہرست کو بلند آواز سے پڑھا تو ایک نام نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا، نیمار جونیئر۔ اپنی فٹنس پر مہینوں پسینہ بہانے کے بعد 34 سالہ فارورڈ نے راحت کی سانس لی، کیونکہ اس نے شمالی امریکہ میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے برازیل کے 26 رکنی اسکواڈ میں جگہ حاصل کی، جو 11 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دمشق میں شام کی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب کار بم دھماکے میں کم از کم ایک فوجی ہلاک اور 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ منگل کو سرکاری میڈیا کی طرف سے کئی گئے ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ فوج کے ایک یونٹ کے ارکان نے دارالحکومت کے باب شرقی ضلع میں جائے وقوع کے قریب نصب ایک CC ساختہ دھماکہ خیز آلہ دریافت کیا ہے۔ جب وہ اسے ناکارہ بنانے کے لیے آگے بڑھے تو اسی علاقے میں ایک کار بم دھماکہ ہوا۔ اس نے مزید تفصیلات پیش کیے بغیر مزید کہا۔ فلپائنی حکام سینیٹ کے سیکورٹی افسران سے تفتیش کر رہے ہیں جنہوں نے بغیر اشتعال کے اپنے ہتھیار پھینکے، جبکہ ایک سینیٹر جس کو بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے وارنٹ گرفتاری کا سامنا ہے نے قانون سازہ عمارت کے اندر پناہ لی اور بعد میں فرار ہو گئے۔ جوانی تو وکٹر ریمولا، سیکرٹری داخلہ اور مقامی حکومت نے منگل کو کہا کہ 13 مئی کی فائرنگ سینیٹ پر حملہ نہیں تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت بندکے میں کوئی نہیں تھا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے 23 سالہ عمر حیات کو 17 سالہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر اثر انداز کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی ہے، جس کے قتل نے گزشتہ سال خواتین کے تحفظ کے بارے میں ایک بار پھر بحث چھیڑ دی تھی۔ منگل کا فیصلہ معاشرے میں ایسے تمام مجرموں کے لیے ایک سبق ہے، ثنا یوسف کے والد حسن یوسف نے کہا، جسے گزشتہ سال 2 جون کو ان کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔
हैकर्स ने जारी साइबर हमले में दुनिया भर के सॉफ्ट वेयर डेवलपर्स के जरिए कई मशहूर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से समझौता किया है। मंगल को साइबर सिक्योरिटी फर्मों स्टेप सिक्योरिटी और सेफडेप ने नाम नहाद सप्लाई चेन के हमलों की ताज़ा तरीन लहर से खबरदार किया, जिसका मकसद मकबूल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स को समझौता करना है और इस रसाई को प्लांट की नुकसानदा अपडेट्स तक इस्तेमाल करना है जो सार्फिन को नीचे की तरफ धकेलते हैं। अगर आप गोंगा फ़ोन आजमाने के लिए निशानी तलाश कर रहे थे तो यह जदीद कम से कम लाइट फ़ोन नोबल मोबाइल के साथ मिल रहा है, एक ऐसा फ़ोन नेटवर्क जिसे कारोबारी और सियासत दान एंड्रयू यांग ने कायम किया है, जो आपको कम डेटा इस्तेमाल करने पर पैसे वापस देता है। मंगल को 500 लाइट फ़ोन 30 मॉडल स्टॉक में होंगे और नोबल मोबाइल के ज़रिए भेजने के लिए तैयार होंगे। केच है कि आपको 2 साला नोबल मोबाइल फ़ोन प्लान के लिए 5 माहिदा के लिए 1200 तक आता है। एंड्रिज कारपाथी एआई के मुहक्किक जिन्होंने पहले ओपन एआई में मुश्तरका तौर पर काम किया था और इससे कबल टीस्ला में एआई की क़यादत की थी, एंथ्रोपिक में शामिल हो गए हैं। मैंने एंथ्रोपिक में शमूलियत इख्तियार किए कारपाथी ने एक्स मंगल को पोस्ट किया। मेरे ख्याल में एलएलएम्स के फ्रंटियर पर आने वाले चंद साल ख़ास तौर पर तख्लीकी होंगे। मैं यहाँ टीम में शामिल होने और R&D में वापस आने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने तमाम सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स CMOs को हिदायत की है कि वो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मुल्क भर में सम कार्ड्स की फ़रोख्त रोक दी। हिदायत के मुताबिक तमाम मजाज सम सेल चैनल्स बशमूल फ्रेंचाइजेज़ और रिटेल आउटलेट्स को मुकर्ररा औकात की सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO के मुताबिक मंगल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खत्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम में किरदार अदा करने वाले खालिस इलाकाई इस्तेहकाम के तौर पर पाकिस्तान की पेशरफ पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का इजहार मंगल को कोयटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में फैकल्टी मेंबरान और तलबा अफसरान से अपने खिताब के दौरान किया। हैदराबाद आदिलपुर पुलिस ने मंगल को सिंध के ज़िला घोटकी में एक नौअमर लड़की के साथ मबीना इज्तिमाई इस्मत दरी की पहली इतलाती रिपोर्ट FIR दर्ज की इस वाक़े के 2 हफ्ते से ज़ायद अरसे बाद बताया गया है। FIR जिसकी इसवाक पेनल कोड की दफ़ा 376(2) के तहत लड़की के वालिद की शिकायत पर 5 मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज की गई। सेटेलाइट तस्वीर ने जनूबी कैलिफोर्निया में फैलने वाली 2 जंगलों की आग के पैमाने को ज़ाहिर किया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गिवन न्यूज़ूम के मुताबिक लॉस एंजल्स के शुमाल मगरब में वाक़ शहर समी वैली में पीर की सुबह सैंडी की आग भड़क उठी। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वज़ीर ख़जाना बीज़लील स्मोट्रिच ने मंगल के रोज़ कहा कि बेन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का प्रोसिक्यूटर उनकी गिरफ्तारी के वारंट की दरख्वास्त कर रहा है, जिसे उसने ऐलान जंग कहा है। यरूशलेम में अपने दफ्तर से की गई एक तकरीर में स्मोट्रिच ने यह नहीं बताया कि अदालत क्यों वारंट तलब कर रही है, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया कि यह मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की बड़े पैमाने पर तोसी की वजह से है, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसराइल और अर्जेंटाइन ने नवंबर में एक बिराह रास्त परवाज शुरू की है, क्योंकि दोनों ममालिक अर्जेंटाइन के इंतहाई बाजू के सद्दर जावीर मीली और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं। हफ्ते में 2 बार ये परवाज़ इस वक्त आती है जब इसराइल अपनी बढ़ती हुई बैन अल-अक़वामी तन्हाई और काबिज़ ताकत तौर पर उसकी मजबूत तस्वीर के दरमियान लातीनियन जी पॉलिटिकल नक़ मजबूत करने के लिए जारहाना तौर पर जोर दे रहा है। अमरीकी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सीसा मुमकिना तौर पर सिक्योरिटी की एक बड़ी खिलाफ वर्जी से बच गई है। एक नेकनेत सिक्योरिटी मुहक्किक की बदलत जिसने अवामी तौर पर बेनकाब होने वाली उसनाद की निशानदही की, जिससे सरकारी क्लाउड और अंदरूनी एजेंसी के निज़ाम तक रसाई की इजाज़त दी गई। जैसा कि सबसे पहले आज़ाद सिक्योरिटी रिपोर्टर ब्रायन क्रेप्स ने रिपोर्ट किया, गिद गार्डियन के सिक्योरिटी मुहक्किक गियोम वलादोन को स्प्रेडशीट्स में दर्ज बेनकाब सादा मतन की उसनाद के रियाम मिले, जिन्हें सीसा ठेकेदार के लिए काम करने वाले अवामी तौर पर काबिल रसाई बनाया गया था। LG ने एक नया अल्ट्रा गियर गेमिंग मॉनिटर मुतारिफ कराया है, जिसका दावा है कि यह दुनिया का पहला फुल HD मॉनिटर है जिसकी मकामी 1000 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। मॉनिटर में 1920x1000 उसी रेजोल्यूशन है और उसे तेज़ रफ्तार फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां दुरुस्त हदफ और फौरी रद्द-ए-अमल के औकात सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। चन्यूट में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद जांच पड़ताल की जद में आ गया है कि मबीना तौर पर बिजली के अखराजात को बचाने के लिए
क्लास रूम के बंद कर दिए गए थे, जिससे तलबा शदीद लोने वाला के प्राइमरी स्कूल पर मजबूर हुए। ये वाक़ा चिक 131 लोने वाला के गवर्नमेंट प्राइमरी से रिपोर्ट किया गया, जहां दर्जा हरारत बढ़ने के तलबा को मुबीना तौर पर बगैर पंखे के क्लास में बैठाया गया। पाकिस्तान की वजारत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ने मुल्क भर में तमाम जराही और नागवार तबी तरीक़ाकार से पहले HIV और हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग को लाजमी करार दिया है। वजारत ने HIV और हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने, मदद के लिए इन्फेक्शन की रोकथाम और कंट्रोल के इक़दामात के फौरी नफाज के लिए हिदायत जारी की। थाईलैंड ने गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल जराइम को रोकने की कोशिशों के तहत 90 से ज़ायद ममालिक के सियाहों के लिए वीज़ा फ्री क़याम की मुद्दत को कम करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। वज़ीर सियाहत सुरसाक फांचारवेंचुल ने बैंकॉक में नामा निगारों को बताया कि मंगल को मुल्क की काबीना ने इस फैसले की मंजूरी दी थी। ने तस्दीक की है कि इसकी सालाना वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 8 जून से शुरू होगी। नोतो 5 मैक के मुताबिक कंपनी ने प्रेस के अराकीन को भी इवेंट में मदऊ करना शुरू कर दिया है। इस साल की विदेशी की टैग लाइन है कमिंग ब्राइट अप। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने मंगल के रोज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सहील आफरीदी को PTI के बानी इमरान खान से मुलाकात के लिए रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंचने से रोक दिया। उमरान तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात छपाने के जुर्म में 5 अगस्त 2023 से कैद हैं। 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में रावलपिंडी की अडियाला जेल में 14 साल की सजा काट रहे हैं, जिसे अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है। इस्लामाबाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA कराची जोन ने मंगल को शहर के सराफा बाजार में ज्वेलरी की दुकान पर छापे के इल्ज़ाम में 2 अफसरान को मुअत्तल और एक नजीब फर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये पेशरफ्त FIA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से वाक़े का नोट्स लेने और 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने के साथ मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा करने के बाद सामने आई है। इस्लामाबाद पाकिस्तान और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIB ने मंगल को N5 हाईवे के अहम हिस्सों की तामीर नो $320 मिलियन के कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत किए, जो कि कराची से अफगान सरहद के करीब तोरखम तक मुल्क की सबसे तवील कौमी शाहरा है। $316 मिलियन के कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान के लचकदार बहाली और तामीर नो के फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट के तहत कौमी शाहरा N5 की तामीर नो के लिए सान डियागो कैलिफोर्निया में इस्लामिक सेंटर के एक सिक्योरिटी गार्ड को उस वक्त एक हीरो के तौर पर सराहा गया जब वो मुश्तबा हमलावरों को मस्जिद के अहाते में दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते हुए मारा गया। पुलिस नफरत पर मबनी जुर्म के तौर पर तफ्तीश कर रही है। पीर को सान डियागो की मस्जिद में 2 नवंबर हमलावरों की फायरिंग के नतीजे में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए। हुकाम ने अभी तक अवामी तौर पर मुतासरीन की शिनाख्त नहीं की है, लेकिन कम्युनिटी रहनुमाओं ने गार्ड का नाम अमीन अब्दुल्ला बताया है।